Hello students, in this video we will learn about bounded functions. So today we will do some theorems on limits. Okay, so first let us see a definition. Let A be some subset of R. Let f be a function from A to R, and let C belonging to R be a cluster point of A. So we say that f is bounded on a neighborhood of C if there exists a delta neighborhood, or a delta neighborhood V delta of C and a constant m greater than 0, such that mod fx is less than equal to m for all x belonging to V delta of C intersection A. Okay, so we have been given some function f defined from A to R, and C is cluster point of A. We will say that the function is bounded on some neighborhood of C if we can find some delta greater than 0, such that fx is less than equal to m for all x belonging to delta neighborhood of C intersection A. Or we can write it as equivalently, that is mod fx is less than equal to m for all x belonging to C minus delta to C plus delta intersection A. So if we can find some positive real number m such that the value of modulus of f is less than equal to m for each x in this C minus delta to C plus delta intersection A, then we will say that f is bounded on a neighborhood of C. So is this definition clear to everyone? ये डेफिनेशन है फंक्शन की बाउंडेड होने की. जैसे सीक्वेंस बाउंडेड होने पे डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड, क्या होती है डेफिनेशन? When there exists an x, a sequence an is bounded if, क्या होता है? If there exists some m greater than 0 such that an is less than m, है ना? for every n ठीक है. अब क्योंकि हमें f की बाउंडेडनेस बोलनी है, f इज बाउंडेड, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि बाउंडेड पूरे डोमेन पे नहीं, बस अभी हम C के नेबरहुड में बात कर रहे हैं, ठीक है. कोई ये पॉइंट C है, वी वांट टू टॉक अबाउट बाउंडेडनेस ऑफ f इन दिस रीजन. सो अब जैसे ये f है तो तुम कहोगे कि इतने रीजन में जो है ये जो है इसके लिए तुम्हें कोई m मिल जाएगा सच दैट दिस इज लेस देन इक्वल टू m, ठीक है ना. जैसे मैं दिखाता हूँ एग्जांपल, लेट अस सी एन एग्जांपल. पहले एग्जांपल बना लेते हैं, ठीक है. सो लेट मी ड्रॉ. ये मेरा C है, दिस इज माय सम फंक्शन A, दिस इज C माइनस डेल्टा, दिस इज C प्लस डेल्टा. ठीक है. सो ये हमारा f है.
सो सी के डोमेन में ये बाउंडेड है, क्योंकि अगर मैं m को ये ले लूं, इफ आई टेक m टू बी इक्वल टू दिस, ये m ले लूं, दिस इज m, तो क्या होगा, और माइनस m इधर आ जाएगा फिर, ठीक है, माइनस m इधर आ जाएगा। सो एनी वैल्यू, अगर मैं कोई भी इधर x उठाता हूं तो उसका fx कहां पे आएगा, वो यहां पे आ जाएगा x, दिस इज fx, कोई भी x उठाया सो fx हो जाएगा ये, और इसकी वैल्यू क्या है, डेफिनेटली मॉड fx इज लेस देन m, है ना, क्योंकि ये माइनस m से भी बड़ा है। माइनस m इज लेस देन fx इज लेस देन m, है ना। इसमें कोई भी पॉइंट लोगे इस डोमेन के अंदर तो तुम्हारा fx कहां पे आएगा, वो यहां पे आएगा, ठीक है, ये तुम्हारा fx है, इसका ये जो बनेगा ये यहां पे बनेगा, इतने में आएगा, ये तुम्हारा fx का हो गया वैल्यूज, और ये डेफिनेटली माइनस m से m के बीच में लाई कर रही है, राइट। दिस इज लाइंग बिटवीन माइनस m टू m, so mod fx is less than equal to m, so we say that f is bounded, ठीक है। अगर हम कोई ऐसा m ढूंढ लेते हैं such that every value of f is less than equal to that m, then we say that the function is bounded, ठीक है। is this definition clear to everyone? Yes, sir. Show that. So how you will show this, बताओ। How you will show this, बताओ। हमें शो क्या करना है, we have to show that suppose f is bounded, तो क्या होगा, suppose f is bounded on some neighborhood of 0, फिर क्या होगा, what does this mean, fx there exists delta greater than 0 and m greater than 0 such that mod fx is less than equal to m for all x belonging to 0 minus delta to 0 plus delta, ठीक है, क्योंकि पूरे r पे डिफाइंड है तो इंटरसेक्शन a लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, राइट। ये क्लियर है सबको, यही थी ना डेफिनेशन ऑफ बाउंडेडनेस। ये देखो यहाँ पे क्या था कि देयर एग्जिस्ट डेल्टा एंड m such that fx is less than equal to m for all x belonging to c minus delta to c plus delta intersection a। अभी a हमारा पूरा r है तो इसलिए इंटरसेक्शन a लेने की जरूरत नहीं है हमें। कोई ऐसा मुझे दे सकते हो तुम, ऐसा कोई x such that fx greater than m हो जाए, कैन यू गिव मी एन x इसके अंदर माइनस डेल्टा से डेल्टा के बीच में such that fx greater than m हो जाए। सर 1/n ले ले तो 1/n 1/n कह रहे हो या 1/m कह रहे हो, n 1/n दिस वन ये कह रहे हो, ये लेकिन इसमें बिलोंग करेगा ये, सर m बड़ा होगा तो हर एक मतलब वो आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी से ऐसा हर एक लैम्डा एग्जिस्ट करेगा। यस, तो 1/n से बड़ा सो वी विल यूज आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कि इस तरह का नंबर इसके बीच में आ जाए, ठीक है ना। सो मैंने बताया था ना आर्किमिडियन प्रॉपर्टी बहुत जगह यूज होगी, जब भी इस तरह कुछ आता है ना 1/n की फॉर्म का तो वहां पे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यूज हो जाती है। जब भी किसी, अब अननोन नंबर है ये, दिस इज अननोन, और इसके बीच में कोई नंबर ढूंढना है तो वो आर्किमिडियन से ही आता है, ठीक है।
So by Archimedean property for delta greater than 0, there exists m belonging to z positive such that क्या होगा 1 by m is less than delta. ठीक है, and this is greater than 0. आप क्या करेंगे, अभी हमें चाहिए कि fx जो है वो ग्रेटर देन m हो, मतलब कि 1 by जो ये m आएगा 1 by ये m हो जाएगा ना, f of 1 by m this should be greater than m, ये मतलब कि m should be greater than m. तो इस तरह का ये कैसे हम वो करेंगे कि ये m ग्रेटर देन m हो. We will take let n equal to maximum of m and m plus 1. ठीक है, जो भी बड़ा है इन दोनों में से वो ले लेंगे, राइट? सर ये m और m plus n ये कहाँ से आ गया सर? ये तो ये आर्किमिडियन से है m. देखो आर्किमिडियन तो कह रहा है, देखो तुम्हारा ये है, ये माइनस डेल्टा है, ये डेल्टा है, ये 0 है. आर्किमिडियन कह रहा है कि यहाँ पे 1 by m आ गया तुम्हारा कोई, ठीक है, ये कोई तुम्हें आर्किमिडियन से ये मिल गया. लेकिन अब क्या है हमारा, अगर m इधर हुआ, अगर इधर हुआ m 1 by m इधर हुआ तो काम बन जाएगा अपना, ठीक है ना, क्योंकि तुम कहोगे कि x इक्वल टू 1 by m ले लें तो f of x हमारा m आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन m. अगर ये हो गया, अगर m इफ m इज ग्रेटर देन, देखो if m is greater than m then you will say then take x equal to 1 by m और फिर fx क्या हो जाएगा, f of 1 by m जो कि m आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन m. सो हमारा काम हो गया कि अनबाउंडेड हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है ना, क्योंकि हमने तो एज्यूम करा हुआ है fx लेस देन इक्वल टू mod m फॉर ऑल x, ठीक है ना. सो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई. बट अगर हमारा इफ m इज लेस देन m फिर क्या होगा, ये भी तो पॉसिबिलिटी है. ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे है 1 by m तो अपना काम बन गया, लेकिन अगर 1 by m यहाँ पे है तो क्या करेंगे हम, फिर तो हमें इससे नीचे नंबर चाहिए होगा कोई यहाँ पे, है ना, 0 और डेल्टा के बीच में. तो इसीलिए हम ये n ले रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. फिर हमें ये केसेस नहीं करने पड़ेंगे कि m बड़ा है या m छोटा है यहाँ पे, क्योंकि फिर हम क्या करते हैं, देन टेक x इक्वल टू 1 by m plus 1, ठीक है. सो fx क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा m plus 1 विच इज ग्रेटर देन m, राइट. और 1 by m plus 1 क्यों बिलोंग करेगा माइनस डेल्टा से डेल्टा के बीच में, क्योंकि m इज लेस देन m, ठीक है ना, राइट. ये समझ आया नहीं आया कि n को हम ये क्यों ले रहे हैं? यस सर. अगर नहीं आया तो बोल दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ. दोबारा कर दीजिए. ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके. देखो if m is greater than m then you will say take x equal to 1 by m. तो इसमें fx क्या आ जाएगा, m आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन m. और 1 by m कहाँ बिलोंग करता है, माइनस डेल्टा से डेल्टा के बीच में. सो हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट क्या कह रही है, दिस सेज कि fx इज लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू माइनस डेल्टा टू डेल्टा. लेकिन हमने एक ऐसा ढूंढ दिया इसके बीच में जो इस पे ग्रेटर है, सो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई. सो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी और हमारा अजम्पशन गलत हो जाएगा. अगर m लेस देन m है तो देन व्हाट वी विल टेक x इक्वल टू 1 by
m प्लस वन, सो एफ एक्स हमारा ग्रेटर इक्वल टू m प्लस वन आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन m, ठीक है। बट हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि दिस बिलोंग्स टू माइनस डेल्टा टू डेल्टा? बताओ कोई, ये क्यों होता है? आर्किमिडीज प्रॉपर्टी। नहीं बेटा, m क्योंकि ग्रेटर देन वो लेस देन m है, m is less than m, so this implies 1 by m is less than 1 by m, ठीक है ना। और 1 by m किससे छोटा है? डेल्टा से, सो ये माइनस डेल्टा से डेल्टा के बीच में आ गया ना, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और 1 by m plus 1 is smaller than 1 by m, राइट। देखो 1 by m plus 1 is smaller than 1 by m and 1 by m is smaller than m and this is smaller than डेल्टा, और ये सारी चीजें पॉजिटिव है, सो ये माइनस डेल्टा से डेल्टा के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो इस केस में x को हमने क्या लिया? 1 by m plus 1। इस केस में क्योंकि m बड़ा था m से, सो हमने m ले लिया। इस केस में m स्मॉलर था तो कैपिटल M ले लिया। इसलिए हम ये कर रहे हैं कि ये दोनों केस ना करने के बजाय सीधे इसी से हम लिख सकते हैं, ओके। समझ आया या नहीं आया? यस सर। ठीक है, क्योंकि हमें ये दो केस आ रहे हैं ना, एक बार x को 1 by m ले रहे हैं, एक बार x को 1 by m plus 1 ले रहे हैं। तो इसकी जगह मैं क्या करूंगा? सीधे x इक्वल टू 1 by n बोलूंगा, जहां पे n जो होगा मेरा वो मैक्सिमम ऑफ m और m, जो भी बड़ा होगा वो अपने आप आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे m बड़ा था तो हमने m आ गया, यहाँ पे m plus 1 बड़ा था तो m plus 1 आ गया, राइट, ठीक है। ठीक है ना, हमने n को ले लिया मैक्सिमम ऑफ m और m प्लस 1, मतलब कि दिस इंप्लाइज n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड दिस इंप्लाइज 1 by n इज लेस देन इक्वल टू 1 by m, एंड ठीक है ना। नाउ लेट x इक्वल टू 1 by n, देन x बिलोंग्स टू माइनस डेल्टा टू डेल्टा, right, because 0 is less than 1 by n is less than 1 by m and this is less than delta, ठीक है। so x belongs to minus delta to delta और fx क्या है? fx है 1 by x which is equal to n and which is greater than equal to m plus 1 which is strictly greater than m, so this contradicts। सो यहाँ पे हमने कहा डबल स्टार में क्या कर रहे हैं कि एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स इन माइनस डेल्टा टू डेल्टा, बट हमने यहाँ पे एक एक्स ढूंढ लिया है एक्स इक्वल टू 1 by n जिसमें एफ एक्स इज ग्रेटर देन एम आ रहा है, सो कॉन्ट्रडिक्शन टू, so this is a contradiction to double star, so hence our assumption is wrong and f is unbounded, yeah, f is not bounded on any neighborhood of, f is not bounded on any neighborhood of 0 को वैसे। So is this proof clear to everyone? Yes sir. बाकियों को भी क्लियर है? Yes sir.
Okay, so let us go back to our definition. ठीक है, so in other words, in simpler words, what we will say, so in simpler words, अगर हम इसे लिखें, let f be a function from a to r and c be a cluster point of a, so we say that f is bounded on some neighborhood of C if there exists delta greater than 0, m greater than 0, such that mod fx is less than equal to m for all x belonging to C minus delta to C plus delta intersection A, or that is, I can write it like this, minus m is less than equal to fx is less than equal to m for all x belonging to C minus delta to C plus delta intersection. तो ये वाली डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है. बाउंडेड का मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट डेल्टा एंड m greater than 0 both positive such that mod fx is less than equal to m for all x belonging to C minus delta to C plus delta intersection A. Right? Yes, sir. Okay, so let us do the first theorem based on boundedness. So theorem, if A is contained in R and f is a function from A to R, and C belonging to R is a cluster point of A. Okay, make it let. Okay. So let A be this and C belonging to R be a cluster point of A. If f has a limit at C, then f is bounded on some neighborhood of C. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर that is if limit x tends to C fx exists, then f is bounded on some neighborhood of C. ये so, कैसे प्रूव करेंगे, how we will prove this, बताओ how you will prove this. अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो f should be bounded on some neighborhood of A. तो गिवन क्या है हमें, यस, हाँ गिवन है हमें कि लिमिट x tends to C fx exists. तो हम क्या करेंगे, we will take and equals से L. चलो मान लिया कि L के बराबर है. नाउ हमें एक डेल्टा फाइंड करना है और एक m फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे ना, क्योंकि हमें एक ही m फाइंड करना है, आर्बिट्री m फाइंड नहीं करना है, वी हैव टू फाइंड वन m. तो एप्सिलॉन को कुछ भी फिक्स नंबर ले लेंगे, कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है. वो उसका प्रूफ याद है तुम्हें, लिमिट n tends to infinity an exists, then an is bounded, is bounded sequence. ये याद है इसका प्रूफ, every convergent sequence is bounded, every convergent sequence is bounded. इसका प्रूफ याद है किसी को, Yes.
sir. कैसे करते थे इसे? Sir, let a n be a convergent sequence with limit of a n equal to something. Okay, L ले लेते हैं. We show that a n is bounded for epsilon equal to 1 greater than 0. हाँ, so epsilon equal to 1 फिक्स कर लेते थे वहां पे, ठीक है ना. और उसमें क्या करते थे? Then we show that a n minus L is less than less than 1 for all n greater than equal to. For all n greater than equal to m. हाँ, फिर क्या करते थे? यहाँ पे रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाते थे, राइट? Yes, sir. और यहाँ से क्या आ जाता था? less than 1 plus I mean a n 1 plus L आ जाता था for all n greater than equal to m. तो ये हो जाता था. और साथ में तुम ये जो, क्योंकि ये for all n greater than equal to m है, तो बाकी m ले लेते थे. मैक्सिमम ऑफ ये लेते थे a1 a2 am minus 1, राइट? इसको m लेते थे, है ना? And then you used to show that an is less than equal to n for all n. ठीक है ना? ये प्रूफ याद है सबको? Yes, sir. ठीक है. सो सिमिलरली हम यहाँ पे 1 की जगह कुछ भी ले सकते हैं. एनी बस फिक्स करना है हमें कुछ भी, क्योंकि जैसे कोई भी a लेते तो यहाँ पे a आ जाता, ये a हो जाता और ये a हो जाता. सो कुछ भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. 1 तो बस दिखने में अच्छा लगता है, इसलिए वी टेक 1, बट ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि 1 ही लेना है. यू कैन टेक एनी नंबर, बस फिक्स करना है हमें, ठीक है. क्योंकि हमें ये लेना होता है, m फिक्स फाइंड करना होता है. तो सेम वे वी प्रूव दिस आल्सो. हम जितने भी इसमें थ्योरम्स करेंगे ना, तो सबके प्रूफ जो है सिमिलर टू सीक्वेंस वाले होंगे. तो सीक्वेंस वाले प्रूफ याद रखोगे तो यू कैन इजीली प्रूव दीज थ्योरम्स. So we have to show limit x tends to c, fx exists and equals L. Oh, this is given to show there exists delta greater than 0, m greater than 0 such that mod fx is less than equal to m for all x belonging to c minus delta, c plus delta, intersection a. Right? This is what we have to show. So what we will do? We will take epsilon equal to 1 ही ले लेते हैं, ठीक है. You can take any real number in place of this. So you can take any real number in place of this, ठीक है ना. कोई ये जरूरी नहीं है कि 1 ही लेना होता है, but 1 looks good इसलिए we take 1. कभी ये मत सोचना कि 1 ही लेना होगा. Just you can take any real number at this place. So then by definition of limit क्या हो जाएगा? For this epsilon there exists delta greater than 0. इस epsilon के लिए एक delta मिलेगा such that क्या हो जाएगा? Mod fx minus L is less than 1 whenever 0 is less than x minus c is less than delta. Right? Is this clear to everyone? So we have taken epsilon equal to 1 और उस epsilon के लिए हमें एक delta मिल गया such that fx minus L is less than 1 whenever 0 is less than x minus c less than delta. Now what we will do? We will use reverse triangle inequality. So we will use, अगर वो यूज करोगे तो क्या आएगा? Mod fx minus L is less than 1 whenever x belongs to c minus delta intersection a ले लो. So c minus delta to c plus delta, x belongs to a and x is not equal to c. क्योंकि ये strictly greater than 0 है, so x is not equal to c. Right? So this implies mod fx is less than 1 plus L for all x belonging to c minus delta to c plus delta intersection a and x is not equal to c.
हमें क्या शो करना था? सर whenever से for all कैसे हो गया? whenever का मतलब ही क्या है कि जब भी x इसमें लाई करता है, उसका मतलब ही हो गया फॉर ऑल x। इसको मैं whenever भी लिख सकता हूं, बात एक ही है दोनों। whenever का मतलब है कि जब भी x अगर इसमें लाई करता है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, fx माइनस एल इज लेस देन 1। और फॉर ऑल का मतलब है क्या है कि हर एक x जो भी इसमें लाई कर रहा है उसके लिए कंडीशन होल्ड कर रही है, तो दोनों का मतलब सेम ही है। देखो whenever का मतलब क्या हुआ कि जब भी हमारा x इसके अंदर लाई करता है, जब भी हमारा x इसके अंदर लाई करता है तो ये होल्ड करेगा, दिस होल्ड्स, राइट। whenever ever x belongs to this, जब भी हमारा x इसके अंदर होगा तो ये होल्ड करता है। और इसका मतलब फॉर ऑल का मतलब क्या है कि हर एक x जो भी इसमें है उसके लिए ये होल्ड करता है, तो दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है ना? ठीक है, सबको क्लियर है ना? whenever और for all, I can write it as whenever also, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों मतलब सेम ही है, ठीक है। सो हमें शो क्या करना था और हमने शो क्या करा? अभी क्या रह गया शो करने को? हमें शो करना था fx is less than equal to m for all x belonging to c minus delta to c plus delta intersection a, और हमने शो क्या कर दिया है? fx is less than equal to m for all x belonging to this। लेकिन हमारे पास क्या एक्स्ट्रा कंडीशन है यहाँ पे? 1 plus l less than m। उससे क्या, उससे कुछ नहीं होगा, m कर दिया, चलो ये m कर दिया, फिर भी यहाँ पे एक्स्ट्रा है ना, दिस इज एक्स्ट्रा। वहां पे हर एक x के लिए था, दिस वॉज फॉर ऑल x, है ना? तो c भी आ गया इसमें c भी है, लेकिन इसमें हम c को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो हमें c को इंक्लूड करने के लिए क्या करना होगा फिर? m इक्वल टू लेंगे मैक्सिमम ऑफ, जो रह गया उसको ले लो, है ना? an वाले में भी तो यही करा था ना, हमारे पास आया था an लेस देन इक्वल टू 1 प्लस l फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। सो बाकी m वाले रह गए थे, 1 to m वाले, है ना? ये रह गए थे हमारे, इनके लिए हमें पता नहीं था। सो वी टुक, क्योंकि ये फाइनाइट नंबर है तो फाइनाइट का तो मैक्सिमम ले ही सकते हैं हम, ठीक है ना? इनफाइनाइट में प्रॉब्लम होती है मैक्सिमम लेने में, इनफाइनाइट में मैक्सिमम एग्जिस्ट ना भी करे लेकिन फाइनाइट का तो मैक्सिमम हमेशा एग्जिस्ट करता है। अगर तुम्हारे पास 10 नंबर है तो यू कैन ऑलवेज गिव मी द लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, है ना? राइट। सो अगर कोई भी कभी भी फाइनाइट है तुम्हारे पास तो यू कैन ऑलवेज फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, बट अगर इनफाइनाइट है देन यू कैन नॉट से कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। इट मे बी पॉसिबल कि बड़ा हो, इट मे बी पॉसिबल बड़ा ना हो। फिर वहां पे कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी आती है जब भी इनफाइनाइट हो जाता है। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या है कि अगर बाउंडेड है तो कहोगे कि सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है और इन्फीमम एग्जिस्ट करता है, अगर बाउंडेड नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना? So m is equal to maximum of fc 1 plus l. So this is our m. Then clearly mod fx is less than equal to m for all x belonging to c minus delta to c plus delta intersection a, ठीक है? इसमें c वाला भी इंक्लूड हो गया क्योंकि c वाला हमने ले लिया इसमें, राइट? So yes sir, so this implies f is bounded on some neighborhood of c. So this proves our first theorem based on limits. चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। Prove that limit x tends to 0 cos 1 by x does not exist, but limit x tends to 0
x cos 1 by x इज इक्वल टू 0। चलो इसका प्रूफ बताओ मुझे। cos 1 by x की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के लिए क्या करेंगे? सीक्वेंशियल वाला लगा सकते हैं, ठीक है ना, डाइवर्जेंस वाला लगा सकते हैं। एक्स एन इक्वल टू 1 बाई एन पाई ले लिया एंड वाई एन इक्वल टू एन पाई पे तो नहीं, एन पाई नहीं लेंगे, यहाँ पे एन पाई बाई 2 लेंगे वो इसमें, क्योंकि वो cos x है तो वो पाई बाई 2 लेना पड़ेगा क्योंकि हमें वो 0 चाहिए, ठीक है ना। सो इसमें क्या लेंगे, xn पे 0 चाहिए। cos t 0 कब होता है? when t is equal to 2n plus 1 पाई बाई 2 ऑड वाले, है ना, पाई बाई 2 पे, देन फिर किस पे होता है 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, है ना, इन सब पे 0 होता है। सो ये वाला लेंगे एक तो 1 बाई 2n plus 1 पाई बाई 2, ओके। सो xn we will take 1 by 2n plus 1 pi by 2 और yn क्या लेंगे, cos t 1 कब होता है? 1 upon 2n pi. t is equal to when 2n pi. 2n pi पे, राइट। सो 1 by 2n pi। सो ये दोनों लेंगे तो हमारे पास, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था तुमसे कि हमारे अगर एक कॉमन सीक्वेंस बनानी हो जो कन्वर्ज, जिसके लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता लिमिट, तो क्या करते हैं हम? देखो इस वाली से 0 पे जा रहा है, इस वाली से 1 पे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, वी विल डिफाइन zn इक्वल टू xn if we will take this to be 1 by n pi by 2, ठीक है ना। यहां से xn ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 by n pi by 2 if n is odd और 1 by n pi if n is even, तो यही आ जाएगा, राइट। अगर n ऑड है तो ये वाला आ गया, n इवन है तो ये वाला, तो zn क्या होगा, अल्टरनेट सीक्वेंस हो जाएगी f ऑफ zn। अगर fx इक्वल टू cos 1 by x है हमारा, तो f ऑफ zn क्या हो जाएगा 0, अगर जैसे 1 पे 0 आ गया, फिर 2 पे 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया। सो अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है, वो ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है एंड इट डज नॉट कन्वर्ज, राइट। सो कल ये क्वेश्चन पूछा था मैंने, ठीक है। सो कॉमन सीक्वेंस ऐसे निकाल सकते हो, कभी भी तुम्हारे पास दो सीक्वेंस है जो अलग अलग पे कन्वर्ज कर रही है और तुम्हें अगर ये पूछ लिया है कि एक ऐसी सीक्वेंस बताओ जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो क्या करोगे, यू विल टेक अल्टरनेट टर्म्स, xn को ऑड इवन पे रख दिया या ऑड पे रख दिया और yn को इवन पे रख दिया, इस तरह से करके यू कैन कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस, ठीक है। क्लियर है सबको? इज दिस पॉइंट क्लियर? सर ये zn वाला एक और बार बताना। देखो हमारे पास एक तो हमें पता है कि अगर xn इक्वल टू 1 बाई n 2n प्लस 1 पाई बाई, मतलब ऑड वाले टर्म्स लेंगे, यहाँ पे n इज ऑड, तो हमारे पास f ऑफ xn क्या आएगा 0 आ जाएगा, राइट, फॉर ऑल n। और अगर हम yn लेते हैं 1 बाई 2n पाई, n ऑड लेने की, यहाँ पे n ऑड नहीं चाहिए, अगर yn इक्वल टू 2n पाई लेते हैं फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू z, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू z, तो हमारे पास f ऑफ yn क्या आता है, ये 0 आ जाता है, राइट। ठीक है, अब मुझे एक सीक्वेंस बनानी है, ये तो यहाँ पे f ऑफ xn भी कन्वर्ज कर रहा है, f ऑफ yn भी कन्वर्ज कर रहा है, ये 1 आएगा, सॉरी, ठीक है। बट आई वांट अ सीक्वेंस zn such that zn should converge to 0 but f of zn should not converge, ठीक है। तो अगर मुझे इस तरह की सीक्वेंस चाहिए तो क्या करूंगा मैं, आई विल टेक zn इक्वल टू xn एंड yn, ऐसे कर लूंगा अल्टरनेट, n odd और n even। सो इसको
इस तरह से करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी दिस, अब मैंने और n को ऑड ले लिया है तो मेरे को 2n+1 फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है. आई कैन डायरेक्टली रिप्लेस इट बाई n pi by 2. और यहाँ पे क्योंकि n इवन है तो आई डोंट हैव टू राइट 2n, मैं सीधे 1 by n pi लिख सकता हूँ. ठीक है. सो अब ये सीक्वेंस क्या होगी, f of zn क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 0 if n is odd and 1 if n is even, right? Yes, sir. So what does this imply? कि f of zn does not converge. कल यही पूछा था मैंने तुमसे, ठीक है, पेपर में सबने यही वापस सीक्वेंस लिख के आ गए थे इसी टाइप की, बट इसीलिए मैंने सबको 1 नंबर ही दिया है इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन में. ठीक है. और उसको कैसे शो करोगे, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos 1 by x is equal to 0, इसको कैसे शो करोगे बताओ. x को 1/2n pi ले सकते हैं. इसमें तो इक्वल वो लिमिट शो कर दिया ना, इसमें सीक्वेंस लेके क्या करोगे, इसमें तो यू विल हैव टू टेक लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर, वैसे ही स्टार्ट करना होगा टू शो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट 0 लेस देन x minus 0 less than delta should imply x cos 1 by x minus 0 less than epsilon. So you will have to start with this. Consider x cos 1 by x minus 0. आप क्या करोगे इसको, this is x cos 1 by x, so I can write it as like this. अब इसको हमें किसी बड़ी चीज से रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि k टाइम्स c हमें, ये तो x minus 0 हो जाएगा. सो आई वांट टू रिप्लेस दिस, इसके लिए क्या लेंगे हम, ये cos है, cos कहां से कहां तक लाई करता है, -1 से 1 तक, तो mod of cos is less than equal to 1. So this is less than equal, since mod cos theta is less than equal to 1 for all theta, कुछ भी हो वैल्यू, right? Because cos theta lies between -1 to 1, so mod cos theta is less than equal to 1. ठीक है ना, ये बहुत जगह यूज करेंगे ये लिमिट में, राइट? सो x minus 0 आ गया तो डेल्टा क्या लेंगे, डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन, सो काम कर जाएगा हमारा. ठीक है ना. सो द प्रूफ इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, खुद से कर लोगे ना इसे, मैं क्योंकि करवा नहीं रहा, रफली लिखा है मैंने यहाँ पे. ओके ओके. सो फॉर टुडे this much is enough. We will start with algebra of limits tomorrow. Okay. Okay, so let me download the attendance, then you all can leave. Chalo, now you all can leave. I am ending the meeting.